Hello, good evening everyone. Hope you all are safe at home and enjoying your study. Today we are going to start new chapter in CT and the serial number for this sheet is 421109. 421109. Already we have covered theory part in the lectures and today we are going to solve the CET numericals. Today we are going to solve numericals based on the formulas. Two formulas only. First one is the Young's modulus and the breaking force. Young's modulus, you know, it is the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain, and the formula is FLA small l. F is what? Extension produced in the wire. F is tension in the wire. Then small l is the extension. Capital L is the original length. A is the area and Y is the Young's modulus. So based on this formula, we are going to solve 10 problems and the 5 problems will be homework for you. And this breaking force is directly proportional to area, and area is nothing but pi r square, so therefore it is directly proportional to the r square also. So let's start with the first problem. Be ready with the pen and notes and the CET sheets. First problem, a force F is needed to break a copper wire having radius r. The force needed to break a copper wire of radius 2r will be. So look solution here. पहले फोर्स के लिए वायर का रेडियस कितना दिया है? r दिया है. अगर उस वायर का रेडियस 2r हो गया तो ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा? दैट वी हैव टू फाइंड. वी नो the formula for breaking force is what? Directly proportional to radius square. Radius के square को directly proportional है. So we will use that relation. F is directly proportional to r square. Directly proportional है मतलब रेशो लेते समय क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 आएगा. यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 ही आएगा. और रेडियस का रेशो का स्क्वायर. सेकेंड वाला रेडियस क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? रेशो 2 का स्क्वायर. अगर रेडियस हाफ हो रहा है तो 1/2 का स्क्वायर आएगा. अगर रेडियस 3r हो रहा है तो 3 का स्क्वायर आएगा. रेडियस 1/3 हो रहा है तो 1/3 का स्क्वायर आएगा. सो कुछ भी हो सकता है न्यूमेरिकल में. बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू यूज द रिलेशन. सो 2 का स्क्वायर मतलब 4f एंड f1 का वैल्यू दिया है स्मॉल f. सो आंसर इज 4 टाइम्स ऑफ f. तो सेकेंड वाला ब्रेकिंग फोर्स कितना आएगा? 2r रेडियस के लिए 4f एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Now read the fourth problem. Two wires of equal lengths are made of the same material. Material same है, इसका मतलब क्या है? दोनों का Young's modulus सेम होता है. Wire A has a diameter that is twice as that of wire B. All identical weights are suspended from the ends of these wires. The increase in length is, options are given. आइडेंटिकल वायर का मतलब होता है दोनों का लेंथ सेम है, एंड मटेरियल सेम है का मतलब होता है दोनों का यंग्स मॉडुलस भी सेम है. अभी डायमीटर का रेशो दिया है. ए वायर का डायमीटर बी वायर के डायमीटर से क्या है? 2 टाइम्स है, उसका डबल है. दोनों को सेम फोर्स अप्लाई किया है. डायमीटर का जो रेशो होता है वही रेडियस का भी रेशो होता है. देयरफॉर आर ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर बी. देन वी हैव टू फाइंड the relation between the extension in A and B wire. ठीक है. So use this formula. Young's modulus is equals to what? FL upon A into small l. But we have to find the ratio of small l. So ये formula को simplify करो. Small l is equals to FL upon AY. दोनों वायर को सेम फोर्स अप्लाई किया है, इसका मतलब क्या है? ये F कैंसिल हो गया. दोनों का लेंथ ओरिजिनल लेंथ भी सेम है तो ये कैपिटल एल भी कैंसिल हो गया. एरिया के टर्म में क्या आता है? रेडियस आता है. एंड स्मॉल एल का टर्म वैसे ही रहेगा. तो स्मॉल एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 एरिया, क्योंकि एफ गया, कैपिटल एल भी गया और यंग्स मॉडुलस भी गया. सो एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया के टर्म में क्या आता है? रेडियस का स्क्वायर. तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए, एंड रेशो का स्क्वायर.
सो एल ए इज इक्वल्स टू आर बी बाय आर ए का रेशो कहाँ से मिलेगा अपने को, यहाँ से, ये आर बी बाय आर ए यहाँ पे आएगा तो 2 वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा 1/2। सो आर बी बाय आर ए का रेशो मिला अपने को 1/2 का स्क्वायर, 1/4 टाइम्स ऑफ एल बी। नाउ सी द ऑप्शंस। ऑप्शन में क्या दिया है, 1/4 फॉर वायर ए एज फॉर वायर बी। 1/4 फॉर वायर ए के लिए 1/4 है, किसका 1/4 है, बी का। सो फर्स्ट आंसर इज राइट। बी एंड सी आंसर्स आर इन टर्म्स ऑफ हाफ एंड ट्वाइस, तो वो वाला आंसर तो नहीं रहेगा। डी वाला आंसर क्या दिया है, 4 टाइम्स फॉर वायर ए एज फॉर वायर बी। डी वाले में क्या दिया है, आंसर क्या मिल रहा है अपने को, एल ए इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ एल बी। मतलब ए वायर का एक्सटेंशन बी वायर के एक्सटेंशन से 1/4 टाइम्स से। सो देयर हेंस द राइट आंसर इज 1/4 फॉर वायर ए एज फॉर वायर बी। डी ऑप्शन इज रॉन्ग, वो उल्टा दिया है, ए आंसर इज राइट। एक छोटा सा सजेशन है, पहले न्यूमेरिकल पूरा देख लो, खुद से सॉल्व करो, पॉज ले लो, देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Okay, now we will solve the numerical number 6. When a uniform wire of radius r is stretched by a 2 kilogram weight, the increase in its length is 2 mm. पहले रेडियस r था तो उसके लिए एक्सटेंशन है 2 mm। उसके बाद रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ द वायर इज r/2 एंड द अदर कंडीशन रिमेन द सेम। द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज, पहला जो रेडियस है उसके लिए एक्सटेंशन कितना है 2 mm। सेकेंड वाला रेडियस क्या हो गया, 1/2 हो गया, तो उसके लिए एक्सटेंशन कितना आएगा, मतलब ये पहला वायर है, ये सेकेंड वायर है, दोनों का ओरिजिनल लेंथ सेम है, दोनों को सेम फोर्स अप्लाई किया है, खाली डिफरेंस क्या है, पहले वाले का रेडियस सेकेंड वाले के रेडियस से डबल है, नहीं तो सेकेंड वाले का रेडियस क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया 1/2 से। तो एक्सटेंशन इसमें कितना एक्सटेंशन आएगा सेकेंड वायर में, दैट वी हैव टू फाइंड। रेडियस चेंज हो रहा है, मतलब रेडियस किससे रिलेटेड है, एरिया से। सो दिस स्मॉल एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये हमने यहाँ पे देखा है पहले से। सो L1/L2 इज इक्वल टू A2/A1, 1 है तो 2, 2 है तो 1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड एरिया का मतलब क्या होता है, R2/R1 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। सेकेंड वाला रेडियस क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, मतलब रेशो क्या रिड्यूस्ड हो रहा है 1/2 से हाफ हो रहा है, हाफ हो रहा है मतलब हाफ का स्क्वायर 1/4। सो 1/4 इंटू L2, यहाँ पे L1। अपने को सेकेंड एक्सटेंशन फाइंड करने का है। सो L2 क्या आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई करेगा L1 के साथ। सो आंसर इज 4 इंटू 2, 8 mm एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 22. A wire of length L and radius R is rigidly fixed at one end. On stretching the other end of the wire with a force F, the increase in its length is 1 unit. कोई भी 1 unit रहेगा. If another wire of same material but of length 2L, पहले जो लेंथ था कैपिटल L, उसका लेंथ क्या हो गया डबल, एंड रेडियस R था, उसका रेडियस हो गया डबल। पहले को फोर्स अप्लाई किया था F, तो फोर्स किया अभी 2F, सबको क्या किया है, डबल डबल किया है, तो लेंथ इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। सो सी द सॉल्यूशन हियर। लेंथ रेडियस F एंड L1 इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, लेंथ भी डबल हो रहा है, रेडियस डबल हो रहा है, फोर्स भी डबल हो रहा है, तो एक्सटेंशन क्या होगा। एंड आइडेंटिकल और सेम मटेरियल का वायर है, मतलब यंग्स मॉडुलस दोनों में भी सेम ही है। अपने पास फॉर्मूला पता है, यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, देन एक्सटेंशन यहाँ पे गया और ये यंग्स मॉडुलस यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आके वो हमने सेम है इसलिए उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सो एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FL/A। फोर्स का क्या हो रहा है, डबल, तो यहाँ पे 2 लिखा फैक्टर, लेंथ भी डबल हो रहा है और एरिया भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। एरिया नहीं डबल हो रहा है, उसका रेडियस डबल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, रेडियस का स्क्वायर लेना पड़ेगा, देयरफॉर 2 का स्क्वायर। सो ये 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर इज 4, सो 4 डिवाइड बाई 4 इज 1, हेंस द आंसर इज L2/L1 का रेशो मिलेगा अपने को 1 और L1 का वैल्यू दिया है 1 यूनिट, हेंस L2 कितना मिलेगा, 1 यूनिट ओनली।
एंड द ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर.